Welcome students, I'm Avantika from AVS Knowledge Station, and students, today we'll continue chapter 4 of First Flight book from the diary of Anne Frank. Students, in my previous class we discussed कि Anne Frank कौन है, okay, उनकी क्या life history रही, and she started writing diary because she felt कि उसका कोई real friend नहीं है. Alright, ऐसी feeling जो ज़्यादातर teenagers को फील होती है, ओके, इन देयर लाइफ. ओके, सो she gave a brief introduction about her life which we studied in the previous class, and today we'll start from page 52, and she has started with writing the exact date जहाँ से डायरी लिखनी स्टार्ट करी थी. Saturday 28 June 1942. Dearest Kitty. अब किटी कौन है स्टूडेंट्स? Okay, Kitty is her diary, the name given to her new friend, which is the diary. Okay, so dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. Quaking in its boots का meaning होता है बेटा feeling nervous. Okay, the reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Okay, तो सब nervous क्यों है, पूरी क्लास नर्वस क्यों है? बिकॉज एक मीटिंग होने वाली है बहुत जल्दी जिसमें टीचर्स डिसाइड करेंगे कि कौन पास होगा एंड कौन पास नहीं होगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. ओके, तो ऐसा माहौल है क्लास का दैट दे आर चैलेंजिंग ईच अदर, ओके, एंड ऑल्सो मेकिंग बेट्स. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jax, who have staked their entire holiday savings on their bet. तो अब NA और उसकी फ्रेंड है GN, जिसका नाम बताया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, वो हंसते हैं किसके ऊपर? दो बॉयज हैं CN और जैक्स, जिन्होंने अपनी हॉलीडे सेविंग्स भी बेट में लगा दी, तो उनके ऊपर ये दोनों गर्ल्स हंसती हैं. ओके, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट. ओके, सो बच्चे नर्वस हो रहे हैं और एक दूसरे का मोरल बूस्ट भी कर रहे हैं. ओके, even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. Okay, G's कौन है ये G? G is her friend. Okay, तो ये भी plead करती हैं. Pleading glances means to look at someone in a requestful manner. ठीक है, request करना किसी से, तो G तो request करती है और ये एंग्री आउटबर्स्ट होते हैं. फिर भी क्लास में जो माहौल है वो काम नहीं होता है. ओके, if you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. Okay, it's such an interesting line. पूरी line देखो. She says कि अगर एनए से पूछो तो वो कहेगी क्लास में क्वार्टर ऑफ द क्लास, ठीक है, को तो फेल ही कर देना चाहिए, शुड बी केप्ट बैक. क्यों? बिकॉज दे आर डमीज. उसको वो सब डम लगते हैं स्टूडेंट्स, बट ये क्या कह रही हैं, ऐसा होगा नहीं. बिकॉज शी सेज टीचर्स सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स हैं. ओके, क्रीचर्स मीन्स क्रिएशन ऑफ गॉड. और अनप्रिडिक्टेबल क्यों है? बिकॉज टीचर्स थोड़ा वार्न करते रहते हैं, डांटते रहते हैं, और अल्टीमेटली वो शायद पास कर देते हैं कई बार. ओके, सो शी सेज दैट्स वाई teachers are the most unpredictable creatures on earth. I'm not so worried about my girlfriends and myself, we'll make it. Okay, so this shows कि एने बहुत श्योर थी, बहुत कॉन्फिडेंट थी that she would pass. The only subject I'm not sure about is maths. Anyways, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. Okay, तो ये बहुत कॉन्फिडेंट है वैसे तो, but it's only maths as a subject जिसमें she feels a bit less confident. Okay, तो ये एक दूसरे को they keep on motivating each other. Not to lose heart means to keep motivating each other. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, several men, 7 men and 2 women. Okay, तो अब इन्होंने बताया कि सारे टीचर्स के साथ इनकी बड़ी अच्छी रैपो है. 9 टीचर्स हैं, 7 men हैं और 2 women. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. तो अब इन्होंने एक पर्टिकुलर टीचर के बारे में बताया जिनका नाम है बेटा मिस्टर कीजिंग. एंड ओल्ड फॉगी होता है एन ओल्ड पर्सन जो थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप का होता है, पुरानी थिंकिंग का होता है, जो अकॉर्डिंग टू एने है. ठीक है, और शी सेज कि वो टीचर मैथ्स पढ़ाते हैं जो सब्जेक्ट में ये वीक है. ओके, और ये मिस्टर कीजिंग अनॉयड हैं एने से
बहुत लंबे टाइम से. For ages means from a long time. And why is he annoyed? Because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. Okay, तो ये जो मैथ्स के टीचर हैं इनको इतना गुस्सा आता है एनी फ्रैंक पे, क्योंकि एक तो वीक है, और वीक किस लिए? बिकॉज शी कीप्स ऑन टॉकिंग. सो ही गेव एन essay, अ मैथ्स टीचर गेव एन essay ऑन द टॉपिक चैटरबॉक्स. सो शी सेइंग कि उस टॉपिक पे कोई क्या लिख सकता है उसके बारे में आई वुड वरी लेटर, बट शी जॉटेड डाउन द टाइटल. अपनी नोटबुक में इन्होंने टाइटल लिख दिया और फिर नोटबुक बैग में रखी और चुपचाप होने की कोशिश में बैठ गई. ओके, ट्राई टू कीप क्वाइट मीन्स ट्राई किया कि अब टीचर ने नोटिस कर लिया तो टू बी क्वाइट. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द essay caught my eye. अब घर जाके जब इसने होमवर्क कंप्लीट किया, अगेन शी रिमेंबर्ड कि ऐसे भी लिखना है. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मतलब again she started to think कि क्या लिख सकती है. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. ठीक है बेटा, अब आप देख सकते हैं ये एने फ्रैंक कितनी लाइवली थी. ठीक है, ये कोई बहुत इजीली उदास होने वाली या डिमोटिवेट होने वाली गर्ल नहीं थी. शी सेड कि मैं खाली ऐसे लिखना होता तो मैं कुछ भी लिख देती, बट मैं एक रियल ऐसे लिखना चाहती थी टू कन्विंस द टीचर कि बोलना इज अ नेसेसिटी. ओके, टॉकिंग इज सच अ नेसेसिटी. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. I wrote 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. अब सोच के लिखा तो real thoughts आई and she finished her essay. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. ठीक है, तो इन्होंने क्या लिख दिया ऐसे में कि स्टूडेंट का तो एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये की फीचर होता है बात करना, बट स्टिल शी विल ट्राई हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल मीन्स कि वो बातें ना करें. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड. ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या लिख दिया देखिए ऐसे में कि ये एक इनहेरेंट ट्रेट है बातें करना, टॉकेटिव होना, क्योंकि उसकी मदर भी बहुत बातें करती थी. तो जब मिस्टर कीजिंग ने ये ऐसे पढ़ा ही हैड अ गुड लाफ एट हर आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, तो मिस्टर कीजिंग बहुत हंसे उनके आर्ग्यूमेंट्स पढ़ के. पर जब नेक्स्ट लेसन में फिर वो बातें कर रहे थे तो उन्होंने ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे. आप देख सकते हो इसमें पोर्ट्रेट में कितना गुस्सा हो रहे हैं टीचर, है ना. एट दिस टाइम आई वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स. इनकरेजिबल क्या होता है स्टूडेंट्स? इट मीन्स समवन हु कैन नॉट बी करेक्टेड. ओके, एक ऐसी चीज़ जिसको सही किया ही नहीं जा सकता. तो उन्होंने टॉपिक में ये इनकरेजिबल वर्ड भी ऐड कर दिया. आई हैंडेड इट इन and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. ठीक है, I handed it in means का मतलब है कि उसने दोबारा ऐसे लिख के दे दिया और 2 लेसन तक पूरे तक मिस्टर कीजिंग ने फिर कुछ नहीं बोला. However, during the 3rd lesson he had finally had enough. Had enough कब? Because she was talking continuously. अभी भी वो बातें कर रही थी तो टीचर को और गुस्सा आया. So what he did? Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack 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 said Mistress Chatterbox. ओके, तो अब चैटरबॉक्स कौन था हम सबको पता है. एनी फ्रैंक वॉज द चैटरबॉक्स. ओके, तो उसको थोड़ा सा अशेम्ड फील कराने के लिए मिस्टर कीजिंग ने टाइटल में ही क्वैक 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 लिख दिया बेटा. द क्लास रोड. ओके, रोड मीन्स दे ऑल लाफ टुगेदर. So I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. She says कि उसका मन नहीं था हंसने का बिल्कुल भी, बिकॉज जितने भी जेन्युइन आर्ग्यूमेंट्स थे वो उससे ज़्यादा नहीं लिख सकती थी जितना वो ऑलरेडी पहले 2 एसेज में लिख चुकी थी. सो नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइटी मीन्स शी डिड नॉट हैव एनी न्यू एंड प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट कि वो ऐसे में लिख पाए. इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल. माई फ्रेंड सैनी, हु इज गुड एट पोएट्री, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प फॉर जॉय. अब देखिए इसकी फ्रेंड सैने, ठीक है, जो पोइट्री में बहुत अच्छे हैं, उसने हेल्प करी इसकी, मतलब बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी अगर यू वांट, एंड
पोएटिक स्टाइल में ऐसे लिखने के लिए अग्री उसने किया फ्रेंड ने, और ये खुश हो गई एने फ्रैंक. मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम. ठीक है, तो उसने क्या कहा, ये जो थी ये अपनी मिस्टेक नहीं देख रही थी बेटा इस टाइम. शी सेड कि वो तो मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, बट मैं आई मेक श्योर कि उन्हीं का जोक बन जाए, उन्हीं पे सब हंसे. ओके, जोक वॉज ऑन हिम. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. ठीक है, तो अब इसने रोल प्ले कर दिया. इसने एक फादर स्वान बता दिया 3 बेबी डकलिंग्स का, जिसने अपने बेबीज को ही मार दिया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे. तो ये दिखाने के लिए कि अगर आप किसी के नेचुरल ट्रेट को कर्ब करोगे, रोकोगे, तो वो मर जाएंगे. ये दिखाना चाह रहे थे मिस्टर कीजिंग को. लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे. ही रेड the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. तो इन्होंने क्या किया मिस्टर कीजिंग ने, उन्होंने पढ़ी पोयम और वो शायद फाइनली कन्विंस हो ही गए कि एने चेंज नहीं होगी कभी भी, वो है ही बॉर्न टॉकेटिव. तो उन्होंने वो पोयम पढ़ी और उसी क्लास में नहीं, डिफरेंट क्लासेस में अपने कमेंट्स के साथ ऐड करते हुए दूसरी क्लासेस में भी पोयम पढ़ी. Since then I've been allowed to talk. सोचो कितनी अनोखी बात, such a different expectation from a teacher. तब से टीचर ने अलाउ कर दिया to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing is always making jokes these days. Okay, yours Annie. ठीक है, तो अब एने ने ये कितना फनी हमको एक इंस्टेंस सुनाया. ठीक है, कि कैसे उसके इतनी जो प्रैक्टिकल और जेन्युइन सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स थे इन फेवर ऑफ टॉकिंग. ठीक है, तो उसकी वजह से उसके टीचर ने उसको बोलना ही अलाउ कर दिया, क्लास में टोकना बंद किया, और रादर मिस्टर कीजिंग खुद भी चेंज हो गए. ओके, सो हियर इट शोज यू इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विद स्लाइट अडेप्टेशन. ठीक है, तो ये बता रखा है कि इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट डायरी, और थोड़ा बहुत इसको अडेप्ट मतलब चेंज किया हुआ है, बहुत ही माइन्यूटली. ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द एम ऑफ द स्टोरी? ये दिखाने के लिए कि वो कितनी ऑर्डिनरी आप जैसे ही एक स्टूडेंट थी. वो ज्यू थी, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ डिफरेंट थी जैसा हिटलर ने सोचा, एंड such a precious life was lost. Okay, so it's a beautiful chapter. Read it again, go through the oral comprehension check, and also in your own words explain the story to your family members. Students, study sincerely and stay safe.